Good morning to everyone. In the last lecture, we have started with ratio analysis, and ratio means making comparison between two or more items. Here with ratios means making comparison with reference to ratio analysis. In this chapter, it is where we are making comparison between two or more items in the balance sheet. And see, in the financial statement, ratio analysis, like yesterday I explained you, is a process of computing and presenting the relationships between the items in the financial statement. But today what we are focusing is on balance sheet ratios. I have already explained you two ratios. One is current ratio. Current ratio compares the current assets with the current liability. This is a pure ratio, which is the one item divided by another and expressed is to one में expressed होता है. Standard current ratio is 2:1. Formula current asset divided by current liability. Then we discuss our second ratio, which is liquid ratio, which is also called as quick ratio, acid test ratio. Your liquid ratio compares the quick assets with the quick liabilities. This is also a pure ratio. Standard is 1:1. Means अगर हमारे पास बराबर मीन्स क्विक लाइबिलिटीज को पे करने के लिए सेम अमाउंट का क्विक असेट्स है, देन वी से इट इज अ स्टैंडर्ड रेशियो. एंड what we had see for the current ratio also, standard is 2:1. means agar we must have the what is the standard for one current liability, we should have a double amount of current assets. They say that is the standard ratio. Now let us move to our third ratio. After liquid, what is the third ratio? Let us see. Third balance sheet ratio, that is stock to working capital ratio. Stock to working capital ratio. This is the third balance sheet ratio, stock to working capital ratio. This ratio shows the relationship between the closing stock and the working capital. Working capital is the capital which is required for the day-to-day working of the business. So working capital, we here see stock working capital का कितना proportion है, means working capital में stock कितना percent है, कितना. So this रेशो हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन द वर्किंग कैपिटल. एज यू ऑल नो, वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट या माइनस करंट लायबिलिटी. इसको करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं, देन वी गेट अवर वर्किंग कैपिटल. सो वर्किंग कैपिटल में स्टॉक इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द वर्किंग कैपिटल. So यहाँ पे हम लोग by this ratio what we can do, this ratio helps to judge the quantum, that is quantum of stock या inventory, quantum of stock in relation, quantity of stock in relation to the working capital of the business.
दिस इज अ परसेंटेज रेशो, तो ये परसेंटेज में बताएंगे. दिस इज अ परसेंटेज रेशो. ये कौन सा रेशो है? परसेंटेज रेशो है. मीन्स हम इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे. इसको हम स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोल सकते हैं, या तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज, व्हाट इज द अदर नेम फॉर इट? The other name for it is inventory working capital ratio. Inventory means stock. So inventory working capital ratio. So now let us see its formula. Let us see the formula of stock to working capital ratio. इसका formula है stock, that is closing stock, divide by working capital into 100. Because it's a percentage ratio, हम multiplied by 100 करते हैं. This is the formula for stock to working capital ratio. Stock upon working capital into 100. Stock upon working capital into 100. So here what they say is, what is the standard? स्टैंडर्ड मतलब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि वैसे तो डिपेंड अपॉन, इट डिपेंड, स्टैंडर्ड कितना स्टॉक रहना चाहिए वर्किंग कैपिटल में. दिस डिपेंड्स अपॉन, दिस डिफर्स अपॉन फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री या कंपनी टू कंपनी. उनका क्या पॉलिसी है कि उनको कितना स्टॉक मेंटेन करना चाहिए. बिकॉज देखो, स्टॉक मेंटेन करने के लिए हमें फंड्स के ऊपर भी ध्यान देना है, हमारे पास उतना प्लेस का अवेलेबिलिटी है टू स्टोर फॉर द स्टोरेज पर्पस ऑफ द स्टॉक, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो स्टॉक का कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, दिस differs from industry to industry, and even it can be from company to company within the same industry. But it is said कि 100% से ज्यादा रेशो much worse than the company standard. For example, if it's exceeding 100% से ऊपर, मतलब suppose 100% से ज्यादा होगा, तो we will say that it is very unsatisfactory liquidity position. कि हम कंपनी का पूरा जो वर्किंग कैपिटल है वो स्टॉक में लॉक्ड अप हो गया है. as funds are locked up in stocks which may not be saleable in time to pay off the creditors. मतलब अगर स्टॉक ज्यादा रहेगा तो उसको सेल करना मुश्किल हो जाएगा, सेल करना मुश्किल हो जाएगा तो क्रेडिटर्स जो हमने मतलब जो हमने उधार में, क्रेडिट में, वॉट एवर गुड्स वी हैव परचेस्ड, दैट इफ वी आर नॉट एबल टू सेल ऑन टाइम, देन वी विल नॉट एबल टू रीपे आवर क्रेडिटर्स ऑन टाइम. So that shows a bad liquidity position, unsatisfactory liquidity position, and it also says it is bad inventory management. Inventory को properly manage नहीं किया. So that you will be the position if stock is not maintained at optimum level. So हमेशा stock कौन से level में maintain होना चाहिए? Stock should be maintained at optimum level, not more also and not less also. अगर suppose हमारा जो ratio है stock working capital much better than the company standard, कंपनी स्टैंडर्ड से बेटर है, मींस 100% से कम है, तो शो सैटिस्फैक्टरी सॉल्वेंसी पोजीशन. That means we have sufficient liquid funds to pay off our creditors, effective inventory management, optimum level of trading. So normally it should be better. हमारा जो stock to working capital है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, बट इसका कोई स्टैंडर्ड रेशो नहीं है. बिकॉज एवरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंपनी टू कंपनी, ऑप्टिमम लेवल may differ
सो इसका नॉर्मली कोई स्टैंडर्ड रेशो नहीं है, बट हम बोलते 100% से ज्यादा अगर होगा इसका स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशो, इफ इट्स मोर देन 100% देन वी मे से दैट इट इज बैड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हमारे वर्किंग कैपिटल से भी ज्यादा स्टॉक है, then it will be difficult to sell. If it is difficult to sell, then it will be difficult to repay the money to the creditors. जो हमने उधार में स्टॉक खरीदा है वो रीपे करने में भी प्रॉब्लम होगा. So that way this is the and now here I will show stock means what? Stock means closing stock. And working capital is what? Working capital is equal to current asset minus current liabilities. Current liabilities. So this is the, and then we get our stock, we get our working capital, we can substitute the formula, we will get the answer in percentage. Stock to working capital ratio or the inventory working capital ratio. Now we can move to our next ratio, which is proprietary ratio. Next is proprietary ratio. So now what do you mean by proprietors? Proprietors means the owners. So this is related to the owners fund in the business. This ratio is related to the owners fund in the business. Owner का जो पैसा business में है उससे related है ये. So proprietary ratio या विद शॉर्ट फॉर्म में PR भी लिख सकते हैं, कंपेयर्स प्रोप्राइटर्स फंड्स विद टोटल असेट्स. मतलब क्या है, या तो वी में से टोटल लाइबिलिटीज बट जनरली टोटल एसेट्स. तो यहाँ बिकॉज टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, आप टोटल एसेट्स बोलो या आप टोटल लाइबिलिटी बोलो, it is one and the same, because in the balance sheet you will see total asset is equal to total liabilities. So here proprietary ratio says कि proprietor का जो पैसा है वो total asset में कितना यूज हुआ है. टोटल एसेट खरीदने में प्रोप्राइटर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, हाउ मच इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओनर्स, दैट इज शेयर होल्डर्स, इन द टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज, बिकॉज टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज. करेक्ट. सो this is also a percentage ratio. This is also expressed in percentage. This is also a percentage ratio. So this is also percentage ratio. Like we will express this, kitna percent of proprietors fund is involved in total asset. That way we will understand. And see, ये इसको हम और भी नाम से जानते हैं. What is the other names for it? Net worth to total assets ratio, equity ratio. The other names for this, equity ratio, proprietors are equity shareholders. So proprietary ratio, equity ratio or net worth ratio. These are the different names
और we may say asset backing ratio. एक ही रेशो के इतने नेम्स है. Asset backing ratio. These are the names of the same ratio, proprietor's ratio. So now let us see the formula. फॉर्मूला क्या है? प्रोप्राइटर्स फंड. प्रोप्राइटर्स फंड में शेयर कैपिटल आता है. प्रोप्राइटर्स फंड में शेयर कैपिटल आते हैं. हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर्स. तो प्रोप्राइटर्स फंड, और यू में से प्रोप्राइटर फंड भी बोल सकते हैं, और यू में से शेयर होल्डर्स फंड, ओन्ड फंड. जो नाम से बोलना है वो नाम से बोल सकते हो. प्रोप्राइटर फंड में क्या आता है? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट. वो हमने जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट किया, शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है? शेयर होल्डर का पैसा, दैट इज शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट. यू विल गेट द प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइड बाय, ये किसमें कितना लगा है? टोटल असेट्स में कितना यूज हुआ है. या तो यू में से, और यू में टेक टोटल एसेट नहीं मिल रहा तो टेक द टोटल लाइबिलिटीज, बिकॉज टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज. into 100 you will get the answer in percentage. into 100 किया तो we will get the answer in परसेंटेज. मतलब प्रोप्राइटर फंड बोल सकते हो, शेयर होल्डर्स फंड बोल सकते हो, डिवाइड बाय टोटल एसेट. बट इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड टोटल एसेट्स, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, आप वो भी ले सकते हो. मल्टीप्लाइड बाय 100 यू गेट द आंसर. नाउ हियर लेट अस सी प्रोप्राइटर्स फंड कैसे मिलता है, या आई विल राइट शेयर होल्डर्स फंड कैसे मिलता है. शेयर होल्डर्स फंड is equal to share capital plus reserves and surplus minus losses and fictitious assets. We get our shareholders fund. फिर हमें what do we want else? We require our total assets also. So total asset is equal to fixed asset. इसमें tangible intangible दोनों रहता है. Fixed assets plus long term investment या investments plus क्या चाहिए? current assets. हमें total assets आ जाएगा. वर्किंग कैपिटल में करंट लाइबिलिटी भी माइनस करते हैं, बट हियर वी वांट टोटल असेट. तो क्या क्या टाइप का असेट है? फिक्स असेट है, इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट्स है. देन वी इफ वी वांट टू से टोटल लाइबिलिटीज, देन व्हाट विल कम? टोटल लाइबिलिटीज में वी हैव ओन फंड या शेयर होल्डर्स फंड, इसमें ऊपर का सब आ जाएगा, प्लस लोन फंड, लोन फंड प्लस करंट लाइबिलिटीज. We get our total liabilities. You can take total assets in the formula, or if you cannot take total assets, total liability and total assets will be equal to total liability. And here, just to make you all understand, total assets is equal to total liabilities. Total assets is equal to total liabilities. So here what is the standard? Standard proprietary ratio is 65%. Standard proprietary ratio is 65%. मतलब अगर proprietors fund total फंड में 65% तक है, देन वी से इट इज अ स्टैंडर्ड रेशो. मीन्स अगर प्रोप्राइटर फंड इससे ज्यादा भी रहेगा, देन वी विल से द वेरी
गुड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, मतलब ओन्ड फंड बहुत ज्यादा है बोरोड फंड से, या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ओवर डिपेंडेंस ऑन लोन फंड। यस, अगर वन मोर थिंग, अगर शेयर कैपिटल में देयर इज कॉल्स इन एरियर्स तो वो हम माइनस करेंगे। वन सी हियर, हम जब ये वाले सम में जब शेयर होल्डर्स फंड निकालते हैं तो शेयर कैपिटल में अगर क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स दिया है, then that calls in arrears we will minus from the share capital if it is given, add reserves and surplus less losses and fictitious asset. That way we will calculate. if calls in arrear दिया है तो शेयर कैपिटल में से माइनस करेंगे, अगर इक्विटी कॉल्स इन एरियर्स दिया है तो इक्विटी शेयर कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर स्टैंडर्ड प्रोप्राइटरी रेशियो इज हाउ मच 65%, अगर हमारा आंसर 65% से ज्यादा आया तो हम बोलेंगे दैट it is a very good long term solvency position, but we will say that over dependence on loan fund, हमारा ओनर्स फंड में ज्यादा ही डिपेंडेंस है, शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा है। अगर कम रहेगा 65% से प्रोप्राइटरी रेशियो, then we may say unsatisfactory long term solvency position, that is owned fund are less than borrowed fund ज्यादा है, but then we may also say less dependence on owned fund, less dependence on owned fund. Now let us do the next our next formula. Let us come to our next formula after this, which is debt equity ratio. We total have 6 formulas. Debt equity ratio, this is the 5th one. 6 ही formulas, और आपको क्या याद करना है, थोड़ा बहुत ये रीड करो किसका क्या स्टैंडर्ड है। What you have to remember is the formula. What you have to remember is the formula and standard क्या है, बाकी सब आप रीड करके समझ सकते हो, but what you have to remember is the formula. So debt equity ratio, debt equity ratio का what does debt equity ratio does? Debt और equity name से ही पता चलता है, it is comparing the debt, that is loan fund, with the equity, debt equity. So this, what does this ratio compares? This ratio compares the long-term debts, debt को compare करते हैं with shareholders fund. Equity means what? Equity means shareholders fund. Equity means shareholders fund. So this is also, this is expressed as a pure ratio. This is expressed as a pure ratio. इसका standard है 2:1. The standard debt equity ratio is 2:1. Standard debt equity ratio is 2:1. So here debt equity means what? हम कंपेयर कर रहे डेप्ट को इक्विटी से कि लॉन्ग टर्म डेप्ट और शेयर होल्डर्स फंड। देखो बिजनेस करने के लिए भी रिक्वायर मनी, मनी कहाँ से आता है? शेयर होल्डर से, ओनर से, और जो हम बोरोइंग्स करते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट से। तो कंपेयर करते हैं यहाँ पे हम शेयर होल्डर का फंड और डेप्ट फंड को। सो द फॉर्मूला हियर इज, formula is equal to debt divided by equity. The simple formula, debt divided by equity. Now debt मतलब what? Loan fund divided by equity मतलब shareholders fund. So this is the formula. Debt मतलब loan fund and equity मतलब
A इज शेयर होल्डर्स फंड, B इज डेप्ट फंड, तो लोन फंड को डिवाइड करते डेप्ट फंड से। एंड स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, अगर हमने डेप्ट लिया है डबल, देन शेयर होल्डर फंड, इफ शेयर होल्डर फंड इज 1, सपोज 1 लाख, तो लोन फंड होना चाहिए 2 लाख डबल, तो वी से दैट डेप्ट इक्विटी रेशियो इज बेटर। सो नॉर्मली क्या हम लोग मानते हैं कि अगर डेप्ट ज्यादा है तो हम लोग को सिर्फ इंटरेस्ट, डेप्ट के ऊपर तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट देना है, बट इक्विटी ज्यादा है मींस ओनर्स इंक्रीज होंगे। नॉर्मली कितना ज्यादा ओनर्स उतना ज्यादा प्रॉफिट में डिवीजन होगा। गेटिंग माय पॉइंट, डेप्ट में तो सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, फिक्स्ड इंटरेस्ट, बट इक्विटी में शेयर होल्डर्स को हम प्रॉफिट देते हैं, एंड प्रॉफिट्स डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट अगर ज्यादा होगा तो, लेकिन एक और चीज एग्जैक्टली अगर ज्यादा प्रॉफिट तो इनको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा शेयर होल्डर्स को, बट एक और चीज है कि जितना ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे उतना कम प्रॉफिट मिलेगा, जितना ज्यादा ओनर्स होंगे उतने प्रॉफिट में डिवीजन होगा। तो इसलिए इट इज सेड दैट डेप्ट डबल एंड इक्विटी सिंगल, मतलब डेप्ट अगर 2 है तो इक्विटी इज 1, दैट इज द स्टैंडर्ड रेशियो 2:1। if they say if actual debt ratio equity ratio is close to 2:1, we say a good safety margin for long term creditors and a proper balance between owned fund and borrowed fund, हम बोलते it is a proper balance। but अगर एक्चुअल रेशियो हायर रहेगा स्टैंडर्ड से तो हम बोलेंगे अनसैटिस्फैक्ट्री, मतलब हमारा जो डेप्ट इक्विटी है बहुत ज्यादा है 2:1 से, तो हम बोलेंगे लेस डिपेंडेंस ऑन ओन्ड फंड, लार्जर बर्डन ऑन फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट। डेप्ट बहुत ज्यादा रहेगा, 2:1 इज ओके, बट उससे बहुत ज्यादा रहेगा तो हमारे ऊपर इंटरेस्ट का बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, और इंटरेस्ट पे करना इज कंपल्सरी, हम उससे बच नहीं सकते। डिविडेंड तो नहीं दिया तो भी चलेगा, बिकॉज डिविडेंड पेमेंट इज नॉट कंपल्सरी। सो इसलिए अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो बहुत हाई रहेगा तो वो भी सही नहीं है, ओवर डिपेंडेंस ऑन डेप्ट फंड रहेगा, लेस डिपेंडेंस ऑन ओन्ड फंड, डिफिकल्टी इन फॉर रेसिंग एडिशनल लोन्स, अगर हमने पहले से ही बहुत लोन लेके रखा है तो आगे चल के हमें और लोन्स नहीं मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट, बहुत ज्यादा डेप्ट रहेगा तो आगे जाके हमें और लोन नहीं मिलेगा बिकॉज पहले से बहुत ज्यादा डेप्ट है। देन अगर लेस रहेगा 2:1 से, if debt equity ratio, actual debt equity ratio is lesser than 2:1, is lesser than 2:1, then we will say that more dependence on equity, smaller burden of interest payment, easily हमें additional loans मिल जाएगा। Yes. So now what we will do, last formula is there, that is capital gearing ratio. Capital gearing ratio. Let us see the last formula, capital gearing ratio. So now first of all, gearing means what? Gearing means what? Gearing means the process of increasing the equity shareholders रिटर्न, इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न को इंक्रीज करना थ्रू द यूज ऑफ डेप्ट, थ्रू द यूज ऑफ डेप्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, दिस gearing is the process of increasing the equity shareholders return through the use of debt। हम डेप्ट यूज करके
क्योंकि डेप्ट में तो फिक्स्ड इंटरेस्ट देना है. डेप्ट यूज करके हाउ आर वी एबल टू इंक्रीज द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिविडेंड, रिटर्न, प्रॉफिट, that is capital gearing ratio. So equity shareholders earn more when the rate of return on capital and total capital is more than the rate of return on debt. बोलते इक्विटी शेयर होल्डर्स को कब ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, जो उनका रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ डेप्ट. इंटरेस्ट रेट से ज्यादा उनका रेट रहेगा, तो वी में से दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर गेटिंग हायर रिटर्न. तो कैपिटल गियरिंग रेशियो जो है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड इनकम, कैपिटल गियरिंग रेशियो is a relationship between fixed income bearing securities and non-fluctuating income, non-fixed bearing securities. तो इसका फॉर्मूला क्या है? लेट मी राइट द फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला है दैट इज, जो हमारा फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी होता है, वो होता है किस पे फिक्स्ड इनकम मिलता है? लोन फंड में फिक्स्ड इनकम मिलता है. फिक्स्ड इनकम हमें किस पे मिलता है? लोन फंड में. एंड फिक्स्ड इनकम रहता है, फिक्स्ड डिविडेंड रहता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में. इसमें रहता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइड बाय, क्या डिवाइड करते हैं? शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड मीन्स व्हाट? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट. तो इसमें से हम क्या करेंगे? इसमें से शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर भी है जो फिक्स्ड इनकम देता है, तो वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस कर देंगे. मतलब क्या है? लोन फंड में प्रेफरेंस शेयर को ऐड किया बिकॉज प्रेफरेंस शेयर में फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, एंड नीचे शेयर होल्डर फंड में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस किया बिकॉज यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है कैपिटल गियरिंग का? फिक्स्ड इनकम इज ऑन लोन फंड एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइड बाय नॉन फिक्स्ड इनकम. नॉन फिक्स्ड इनकम सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है. सो दैट वे हमने क्या किया? फिक्स्ड, हमारा फॉर्मूला हो गया फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी डिवाइड बाय नॉन फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी. तो लोन फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइड बाय shareholders fund minus प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. यस, एंड शेयर कैपिटल में अगर कॉन्सिनरियस रहेगा तो वो भी माइनस करेंगे, बट पूरा शेयर होल्डर्स फंड लिखने के बाद माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. या तो नीचे हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ले ही नहीं, इग्नोर करें, दैट ऑल्सो विल डू, बट शेयर होल्डर ऊपर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ऐड करना है, नीचे माइनस करना बिकॉज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिव्स फिक्स्ड डिविडेंड. तो फिक्स्ड ऊपर, नॉन फिक्स्ड इनकम नीचे. सो इस तरह से कैपिटल गियरिंग रेशियो का भी फॉर्मूला हो जाता है. सो विद दिस व्हाट इज डन, this all the ratios are done, or balance sheet ratios are done. In the next lecture we will be doing the sums on these ratios. Thank you very much everyone.